दिल्ली में 2001 में 50% AT&C losses थे, aggregate technical and commercial losses. Those were huge losses. 50% of the electricity which was coming to Delhi was not being metered or billed, और उसके पैसे नहीं आ रहे थे power sector. This is one major reason for losses in DISCOM. Namaskar to all the delegates and look forward to interacting with you. I would like to know how are theft of electricity cases managed in power sector. Theft of electricity बहुत important है. दिल्ली में 2001 में 50% AT&C losses थे, aggregate technical and commercial losses. Those were huge losses. 50% of the electricity which was coming to Delhi was not being metered or billed, और उसके पैसे नहीं आ रहे थे power sector. This is one major reason for losses in DISCOM and strong action was required to be taken. एक example ले लेते हैं मेरठ का. To understand what is AT&C losses, aggregate technical and commercial losses, उसको दो पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है. One is technical losses. मेरठ में आज की तारीख में जो टेक्निकल लॉसेस हैं, HT सिस्टम्स की वजह से जो टेक्निकल लॉसेस हैं वो 5% है, LT सिस्टम्स की वजह से जो टेक्निकल लॉसेस है वो 10% है. So these are technical losses. Second is commercial. So commercial losses can be divided into 5 parts. First part is deficient metering. So 0.5% of the electricity in Meerut is lost because of deficient metering. Second is billing inefficiency. Bill ही raise नहीं कर रहा है. So because of billing efficiency, 2% of electricity is lost. Third, provisional billing. 2.5% of the electricity, whatever cost of electricity which should go to the DISCOM or the power sector is lost because of provisional billing. Fourth is collection inefficiency. 4% of the cost of electricity is lost because of collection inefficiency. Theft, pilferage से 11. Fifth जो point है वो theft and pilferage है. 11.5% of the electricity is lost because of this. ये एक एग्जांपल दिया है मेरठ का मैंने. अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग स्टेट्स में these figures can vary. बट अगर आप एक एग्जांपल लें मेरठ का तो आप देखेंगे AT&C से लॉसेस से there is tremendous loss to the organization. भाई प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है एक बिजनेस एंटिटी का? भाई 5%, 10%, 16%. अगर आप 20, 30, 40, 50% इलेक्ट्रिसिटी का लॉस ही कर देंगे तो there is no profit margin actually. It is more of a social work. So containing aggregate technical and commercial losses was a very very important task. And उस important task के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में प्रोविजंस डाले गए थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के. सेक्शन 135, 136, 137, 138, 139, 140 and 150. Theft of electricity इसलिए भी important है, it is a criminal offense. For example, you are at very major city and you are preparing for UPSC IAS exams, और आपके जहाँ पे आपने किराए पे रह रहे हैं आप, वहां पे रेड पड़ गई बिजली विभाग और आपका नाम लिखा गया कि भाई you are involved in theft of electricity. It is very dangerous for everyone, क्योंकि आप जब UPSC एग्जाम क्लियर भी कर लेंगे या कोई भी गवर्नमेंट सर्विस का या PSU का एग्जाम क्लियर कर लेंगे, you have to fill a form. There is no criminal case pending against you. If there is a criminal case pending against you, you have to write कि theft of electricity में book. तो अगर फ्यूचर में कभी भी रेड पड़ती है और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, so it is a criminal offense. आप सब लोगों को बोलना चाहिए कि लैंड ओनर का नाम लिखवा दीजिए या फिर जो बड़े बूढ़े हैं उनका नाम लिखवा दीजिए. बच्चों के या पढ़ने वालों का किसी तरह से नाम आना नहीं चाहिए. You should avoid this. सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब क्या होता है. Whenever you go to the court to prove the crime, it can be any other crime also, but theft of electricity के केस में you can divide it in 2 parts. First part which you have to prove is called mens rea, mental element. क्या इस बंदे का इंटेंशन था बिजली चुराने का? Intention is very important. Second part is called actus reus, physical element. Did the person intentionally do something to do theft of electricity? क्या उसने intentionally वायर एक नया कनेक्ट करा है, या intentionally मीटर को डिस्ट्रॉय करा है, या intentionally कोई और एक्टिविटी कुंडी कनेक्शन लगाया है? So these two elements to prove theft of electricity, these two elements have to be proved. First is mens rea, which is called mental element, intention of the person. Second is actus rea, physical element that he has acted upon it. So 2003 के पहले अगर theft of electricity का मैटर होता था तो इंडियन पीनल कोड में जाता था. जिस तरह से नॉर्मल क्राइम होते हैं उस तरह से FIR दर्ज होती थी और FIR के हिसाब से काम चालू होता था कि भाई आपको प्रूव करना है. हमेशा मेंटल एलिमेंट की इंटेंशन था कि नहीं वो प्रूव करना बहुत मुश्किल होता था. तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में एक चेंज किया गया और चेंज ये किया गया कि इन केस अगर कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट, लेट अस अज्यूम वायर या डिस्ट्रॉयड मीटर या कोई और इक्विपमेंट, आपका मैग्नेट कोई भी पाया गया आपके घर में और जब्ती हुई उसकी, इन दैट केस इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट देयर वाज मेंटल एलिमेंट. Obstruction, consumption and use dishonestly caused. So if artificial means is used, in that case it will be presumed that you have the mental element. It is tougher than normal IPC.
सेकेंड एस्पेक्ट इज कि क्या क्या पावर्स हैं एक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की व्हेन दे आर गोइंग फॉर चेकिंग इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट. सो देयर आर 3 powers with the electricity discom. First power is to enter, inspect and break open. So they can break open any locks, they can inspect, they can enter any premises. Second power is search and seize. After breaking open the premises, after inspecting the premises, after entering the premises, they can search the premises and they can seize documents or equipments or instruments. Third power which the discom has is called examine and seize books of account. So it is not only that physical electricity के wires और electricity के equipment seize कर सकती है डिपार्टमेंट, या मशीन या मोटर सीज कर सकती है. They can also seize the books of account, क्योंकि because books of account से आपको पता चल जाएगा कितना प्रोडक्शन हुआ है फैक्ट्री में या कितना काम हुआ है कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में, और उतना काम हुआ है तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होगी. So these are the 3 powers of the distribution company when raids are conducted. Counter question ये आता है, are there any rights of the consumer? So answer is there is rights of consumers. उसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. First is right to remain present during searches. Nobody can ask you to go out while searches are being carried out by the electricity department. Your representative with confidence can stay there and stand there. Second is right to receive list of things seized. So whatever things have been seized by the department, a list has to be prepared. List prepare करने के बाद उसकी एक कॉपी, जो भी चीज सीज हो रही है उसकी एक कॉपी रेट पड़ रही है आपके घर में या ऑफिस में या कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में या इंडस्ट्री में, that copy has to be provided. Third is domestic places not to be inspected at night. रात में कोई भी डोमेस्टिक प्लेस में इंस्पेक्शन हो नहीं सकता. कमर्शियल में हो सकता है, इंडस्ट्रियल में हो सकता है, लेकिन डोमेस्टिक में नहीं हो सकता. तो सूरज ढलता है और सूरज उगता है, सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कैन नॉट गो टू अ रेसिडेंशियल प्लेस. सो दीज आर द 3 राइट्स व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. अब इशू ये है, लेट अस अज्यूम थेफ्ट के चार्जेस लग गए हैं और एफआईआर फाइल हो गई और आपके पास, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल, पावर प्रोफेशनल, आपके पास फोन आया कि सर मेरे पास थेफ्ट के चार्जेस लग गए हैं और पुलिस स्टेशन से आ गया मेरे पास समन. उनको बोलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है. देयर इज अ प्रोविजन ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस. कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि आप जा सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और जो उनके पैसे हैं उन पैसों को आप दे देंगे. द मैटर क्लोजेस, देन यू कैन गो विद दैट रिसिप्ट टू द पुलिस स्टेशन एंड कोर्ट से अगर समन आया तो कोर्ट में आप जाके बता सकते हैं कि भाई मैंने कंपाउंडिंग के पैसे दे दिए. एंड देन वो केस, अगर इफ यू हैव पेड द कंपाउंडिंग, उसको बोलते हैं कई बार समन शुल्क बोलते हैं या राजस्व शुल्क. ये राजस्व शुल्क और समन शुल्क अगर आपने पे कर दिए हैं, सो द मैटर स्टैंड्स कंपाउंडेड. कंपाउंडेड मतलब जितना भी आपका थेफ्ट के चार्जेस है, दे विल ऑल बी ड्रॉप. देयर आर नो थेफ्ट चार्जेस रिमेनिंग एंड ऑटोमेटिकली यू विल गेट, इमीडिएटली यू विल गेट बेल फ्रॉम द कोर्ट. लेकिन अगर कंपाउंडिंग के जो राजस्व शुल्क और समन शुल्क आपने जमा नहीं करा है, देन यू हैव टू फॉलो द एंटायर प्रोसेस. इन दैट केस द नॉर्मल थेफ्ट चार्जेस विल गो कंटिन्यू. यू विल बी कॉल्ड टू द कोर्ट. यू हैव टू अप्लाई फॉर अ बेल. वंस यू गेट द बेल, देन यू विल बी रिलीज्ड. सो दिस इज द प्रोविजंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 सेक्शन 135. आफ्टर 2003 डिस्कॉम्स हैड द चैलेंज. डिस्कॉम्स का ये कहना था कि जो भी कंपाउंडिंग ऑफेंस की जो फीस मिल रही है, दैट फीस इज डिपॉजिटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट इवन इफ माय कंज्यूमर इज हेल्ड गिल्टी एंड पनिश्ड फॉर ऑफेंस. चलिए लेट अस अज्यूम उसने कंपाउंडिंग के लिए पैसे नहीं जमा करे और उसका केस बिजली चोरी का चला. उसके बाद लेट अस अज्यूम कि उसको कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ही इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में गिल्टी तो ठीक है, उसमें उसको फाइन भी लगा दिया और 1-2 महीने के लिए जेल भी भेज दी. लेट अस अज्यूम सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम ही हैज बीन कन्विक्टेड. बट डिस्कॉम्स को चैलेंज था. डिस्कॉम्स का कहना ये था कि भाई आपने मेरे कंज्यूमर को तो जेल भेज दिया, पर भाई मुझे तो कुछ नहीं मिला, या आई हैव लॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी, या जनरेटिंग कंपनी और एनी अदर कंपनी हैज लॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी. अगेंस्ट उस कंज्यूमर के अगेंस्ट मैंने केस भी फाइल करा. सो मेनी लीगल एक्सपेंसेस आई हैव मेड. अब आफ्टर व्हेन द केस वाज डिसाइडेड, आपने फाइन भी लगा दिया, आपने जेल भी भेज दिया, लेकिन मुझे क्या मिलेगा डिस्कॉम को? क्योंकि जो फाइन है वो फाइन जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट में. 2007 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वाज अमेंडेड और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अमेंडमेंट करने के बाद ये प्रोवाइड करा गया सेक्शन 154 सब सेक्शन 5 में that special courts जो इलेक्ट्रिसिटी के मैटर्स को डिसाइड कर रही हैं. रिमेंबर, एक तो नंबर 1 प्रोविजन सेक्शन 135 से 140 तक तो थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का इंक्लूड कर लिया, बहुत अच्छा. बट चैलेंज ये था कि वो तो नॉर्मल कोर्ट्स में डिसाइड होंगे. अब नॉर्मल कोर्ट्स में भैया मर्डर, रेप, एब्डक्शन, दीज आर द सीरियस मैटर्स व्हिच आर गोइंग ऑन इन द क्रिमिनल केसेस. सो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट बहुत लो प्रायोरिटी में आएंगे कोर्ट्स के. सो देन वन मोर थिंग वाज डिसाइडेड दैट इन एवरी स्टेट स्पेशल कोर्ट्स विल बी नोटिफाइड. दो स्पेशल कोर्ट्स विल बी इलेक्ट्रिसिटी स्पेशल कोर्ट. दे आर क्रिमिनल courts, but then they will only deal with electricity matters. So electricity special courts में these matters are listed and expeditiously they are decided. Let us go back to that challenge of the distribution company.
तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का क्लियरली ये कहना था कि जो फाइन है वो तो जा रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में, लॉस, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस और रेवेन्यू लॉस तो मुझे हुआ है, मेरा कंज्यूमर भी आपने जेल भेज दिया, सो व्हाट इज द रेमेडी आई एम गेटिंग फॉर पुटिंग इन सो मच ऑफ एफर्ट्स। देन 2007 में जब ये इशू आया सामने तो 2007 में अमेंडमेंट करा गया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का, और अमेंडमेंट में ये प्रोवाइड करा गया कि दीज स्पेशल कोर्ट्स शैल आल्सो डिटरमाइन सिविल लायबिलिटी बिसाइड्स द फाइन। सो फाइन जो स्पेशल कोर्ट्स है, क्रिमिनल कोर्ट्स है, वो फाइन तो लगाएंगे, गिल्टी भी ठहराएंगे, वो करेंगे, लेकिन उसके साथ सिविल लायबिलिटी भी डिटरमाइन कर देंगे। दैट अमाउंट ऑफ सिविल लायबिलिटी हैज टू बी पेड टू द डिस्कॉम। वन मोर इंपॉर्टेंट प्रोविजन इज दैट जनरली अगर फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, सो फॉर एग्जांपल किसी से लोन लिया एंड 3 साल तक नो प्रोसीडिंग्स ऑफ रिकवरी वर डन, कोई बिल नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं कि भाई लोन वापस दे दो, 3 साल में जो आपके राइट्स हैं टू रिकवर द लोन आर बार्ड बाय लिमिटेशन। इसका मतलब ये है लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड करता है कि एक टाइम फ्रेम के बाद आप रिकवरी नहीं कर सकते लोन की, अगर आपने बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं करा है। और फाइनेंशियल मैटर्स के लिए पैसे से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उसमें 3 साल का लिमिटेशन पीरियड, भाई 3 साल तक अगर कम्युनिकेशन नहीं है, ना आपने मांगा ना आपने दिया, तो लिमिटेशन खत्म हो गया। सिमिलर अगर ये इलेक्ट्रिसिटी एक्ट नहीं होता तो नॉर्मल केसेस में लिमिटेशन पीरियड अंडर लिमिटेशन एक्ट डिसाइड करा जाता कि 3 साल तक अगर कोई बिल दिया और 3 साल तक डिस्कॉम चुप है या कोई भी एंटिटी रिकवरी के, लेट अस अज्यूम जनरेटिंग कंपनी ने एक बिल दिया डिस्कॉम को, 3 साल तक कोई रिमाइंडर नहीं दिया, तो आपके राइट्स एक तरह से डिमिनिश और खत्म हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में उस 3 साल को घटा करके कम करके 2 साल कर दिया गया, 2 years। सो इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 56(2) नो रिकवरी आफ्टर 2 years इज अलाउड अनलेस शोन कंटिन्यूअसली एज रिकवरेबल एज एरियर ऑफ चार्जेस। तो अगर थेफ्ट का भी मैटर है, अगर लाइबिलिटी भी डालनी है थेफ्ट की, तो 2 साल से ज्यादा तो की लाइबिलिटी हो भी नहीं सकती।